अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपने चैप्टर्स अ विज़िट टू केवड़ा माइंड की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज में सबसे पहले आपको वोकेबलरी दी गई है जिसमें वर्ड क्लासिफिकेशन, इन्फेरेंस एंड डिक्शनरी मीनिंग्स। आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनको क्लासिफिकेशन की गई है कि वो वर्ब है, एडजेक्टिव है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में कोई एक वर्ड बताना है कि वो वर्ड क्या कहलाता है। उसके बाद इन्फेरेंस मीनिंग्स, उसकी जो डीप मीनिंग है, उसकी उसकी कंसेप्चुअल मीनिंग क्या है, जबकि डिक्शनरी में उसका मतलब क्या लिखा हुआ है। ये इनके बारे में, उन वर्ड्स के बारे में डिटेल आपको बता रहे हैं। फर्स्ट वर्ड आपकी बुक में दिया गया है फैसिनेट, जिसको वर्ब कहा जाता है एंड इसके इन्फेरेंस मीनिंग है पर्सनल चार्म एंड डिक्शनरी मीनिंग्स अनयूजुअल नेचर। सेकंड ट्यूनल, दैट इज कॉल्ड नाउन। Their inference meaning is a covered passageway and their dictionary meaning is an artificial underground passage. Third, stunning, that is called adjective. So their inference meaning extremely impressive and their dictionary meaning is attractive. Next word, that is utilize, that is verb. Their inference meaning make use of and their dictionary meanings make practice and efficient use of. Next word is captative, that is adjective. Their inference meaning charming and their dictionary meaning capable of attracting and holding interest. Next word is phenomena, that is noun. So their inference meaning in sensation and dictionary meaning effect of a situation that is observed to exist. Monuments, that is noun. Their inference meaning a status and their statues and their next literary jo in dictionary their meaning is a building, a site that is of historical importance. Next word is brilliantly, that is adverb. Their inference meaning is exceptionally and their literary in dictionary meaning that is in a very bright way. Amazement, that is noun. Their inference meaning is astonishment and their dictionary meaning is a feeling of great surprise or wonder. Accumulates, that is verb. Their inference meaning is collect and their dictionary meaning is gather together and acquire an increasing number. Last word is souvenirs, that is noun, and their inference meaning is memento and their dictionary meaning is a thing that is kept as a reminder of a person. So our next question in this chapter of केवड़ा माइंड, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे केवड़ा माइंड के अंदर एक्सरसाइज के अंदर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ द suffixes and their uses. First of all, we should know what is suffixes. The definition of suffixes is a suffixes is added to a root word to change the meaning of the word. So here you can write the word word. Suffixes mean ये किसी भी वर्ड का जो ऐड करते हैं उसके मीनिंग हम suffixes को उन वर्ड्स को ऐड कर देते हैं रूट वर्ड के साथ जो कि उस लफ्ज़ का मतलब ही चेंज कर देता है. फॉर एग्जांपल, इन एग्जांपल में आपको बताया गया है रिमार्केबल. सॉरी, इन रिमार्केबल एबल इज़ द suffixes जो वर्ड के एंड में लगाया जाता है किसी भी लफ्ज़ के और उससे उसका मीनिंग टोटली चेंज हो जाता है. यहाँ पर आपको कुछ लफ्ज़ दिए गए हैं. suffixes अब कौन कौन से हैं जो आपको शुरू में बताए गए हैं. वर्ड हमारे पास है फैसिनेट. सुफिक्सेस वर्ड हमने फैक्सीनेट के साथ फैक्सीनेशन एंड क्लासिफिकेशन उसकी क्या होगी कि फैक्सीनेशन क्या बन जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड द नाउन. सो वी कैन से दैट इज फैक्सीनेशन इज़ अ नाउन. नेक्स्ट वर्ड इज एक्साइट. एक्साइट वी विल प्लस दिस वर्ड excitement. Meant is suffixes, so that is noun. Wise, lee, ly, lee. Lee is suffixes and that is adverb. Adopt, adopt is verb, but when we add the word shun, tio and shun, that is then they make noun.
क्योंकि जब हम वर्ड्स इनके एंड में लगा देते हैं सुफिक्सेस की जगह, तो सुफिक्सेस बनाने के लिए उन वर्ड्स को, तो क्या होता है कि उनका पहले पार्ट ऑफ स्पीच उसका कुछ और होता है, लेकिन जब हम उसके साथ सुफिक्स ऐड कर देते हैं तो वो उसका मीनिंग टोटली चेंज हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज़ इमेज, इमेजिन, सॉरी, इमेजिन। इमेजिन जो है वो वर्ब है, बट इमेजिन के साथ अगर हम सुफिक्स लगा देंगे ARY, इमेजनरी, तो वो एडजेक्टिव बन जाएगा। सेम इसी तरह क्रिस्टल नाउन वर्ड है, बट क्रिस्टल के साथ अगर हम इसके सुफिक्सेस IZE क्रिस्टलाइज्ड कर लेंगे, दैट इज देन दे मेक इट वर्ब। एंड लास्ट वर्ड इज माइनर। माइनर के साथ, माइनर पहले एडजेक्टिव में है, बट जब हम इसके साथ मिनॉरिटी लगा देंगे तो देन इट बिकम नाउन। सो दीज आर suffixes words. Now we will go on language, use of language. आपकी एक्सरसाइज में नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज़ ऑफ लैंग्वेज। इसमें हम use of language, qualitative adjective, it show the kind of quality of a person or a things. ये जाहिर करता है किसी भी शख्स की क्वालिटी, किसी सिफ्त को या किसी चीज़ की। इट डिस्क्राइब द एट्रीब्यूट ऑफ अ नाउन एंड प्रोनाउन। ये किसी भी नाउन या प्रोनाउन शख्स के बारे में या किसी से रिलेटेड जो प्रोनाउन है उसके बारे में बयान करता है। फॉर एग्जांपल, द ब्यूटीफुल बादशाही मस्जिद इज़ बिल्ट एट द सेंट्रल चैम्बर। खूबसूरत बादशाही मस्जिद जो है, अब बादशाही मस्जिद की खूबसूरती को, जो खूबसूरती है, ब्यूटीफुल, दैट इज़ एडजेक्टिव, एंड बादशाही मस्जिद इज़ द नाउन। पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? पोजेसिव एडजेक्टिव इट एक्सप्रेस द स्टेट ऑफ पोजेशन या ऑनरशिप ऑफ नाउन। ये शो करता है किसी भी नाउन की पोजीशन को, उसकी हाकमियत को, लाइक दे आर यूज विद नाउन एंड डू द वर्क ऑफ एडजेक्टिव। पोजेसिव एडजेक्टिव का मुराद ये है कि हम कोई भी क्वालिटी किसी नाउन की हम बयान करें और उसका रिलेशन उसके साथ बयान करें। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल्स आर माई, हर, हिज, दैट इज़ आल्सो कॉल्ड द पोजेसिव एडजेक्टिव। फॉर एग्जांपल, इन दिस एग्जांपल इज गिवन माई फैमिली लव्स द व्यू। अब माई फैमिली के माई है, दैट इज़ पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव होता है कि मलकियत या अपना आप या कोई चीज़ हकमियत शो करना। तो मेरी फैमिली, इसमें माई पोजेसिव एडजेक्टिव, एंड वेयर इज़ योर रूम, तुम्हारा कमरा कहाँ है, एंड योर इज़ द पोजेसिव एडजेक्टिव। अब आपके सामने कुछ लाइंस दी गई हैं और कहा गया, आपका क्वेश्चन ये है कि अंडरलाइन द एडजेक्टिव। हमने पहले लाइन के अंदर से एडजेक्टिव अंडरलाइन करने हैं हर सेंटेंस की, और फिर हमने देन राइट द नाउन एंड प्रोनाउन दैट द एडजेक्टिव डिस्क्राइब इन द स्पेस प्रोवाइड। सबसे पहले आपने जुमले के अंदर एडजेक्टिव फाइंड आउट करना है कि क्वालिटी कौन सी इस जुमले में बयान की गई है, और फिर हमने उस नाउन या प्रोनाउन जो है उसके एडजेक्टिव के साथ हमने उसको रिलेट, उसका ताल्लुक रिलेट करना है कि कौन सा है। फॉर एग्जांपल, आपकी फ़र्स्ट जो बुक के अंदर एक्सरसाइज में है, माई फैमिली प्लान्ड अ ट्रिप टू खेवड़ा माइन। माई फैमिली प्लान एडजेक्टिव इज़ खेवड़ा एंड माइन इज़ द, we can say that is the noun. It was a pleasant morning in March. Pleasant is adjective which I underline, और morning इसमें है आपने। अब pleasant किसको एडजेक्टिव के बारे में बयान किया गया है? खूबसूरत सुबह के बारे में बयान किया गया है। I was so excited that I could hardly sleep at night. अब इसमें excited क्या है? क्वालिटी है, एडजेक्टिव है, कोई सिफ्त है, और ये सिर्फ किसके बारे में है? अपने बारे में, कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। सो आई द अमेजिंग खेवड़ा माइन, अमेजिंग क्वालिटी एडजेक्टिव, एंड खेवड़ा माइन जो नाउन है। द वेदर वॉज क्लियर। अब क्लियर जो है वो आपका जो एडजेक्टिव है, और क्लियर क्या चीज़ क्लियर है? नाउन क्या है हमारा? नाउन इज़ अ वेदर। So I was so fascinated to stand in front of the world's second largest salt mine. I means fascinated, इसमें एडजेक्टिव और सेकंड लार्जेस्ट एडजेक्टिव क्वालिटी है। अब इसमें fascinated किस नाउन को शो कर रहा है? fascinated आई को शो कर रहा है, आई इज़ अ नाउन, और सेकंड लार्जेस्ट जो है वो एडजेक्टिव जो क्वालिटी नाउन की शो करी है, दैट इज़ साल्ट माइन। ऑन एंटरिंग द माइन I saw a
स्पेक्टेकुलर व्यू इन फ्रंट ऑफ मी। अब इसमें स्पेक्टेकुलर जो है दैट इज़ एडजेक्टिव, और कौन से नाउन को शो कर रहा है, ये व्यू के नाउन को शो कर रहा है, सा स्पेक्टेकुलर व्यू। सो आई होप कि आप भी एक्सरसाइज फिल कर लें और आपको एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच।